Good evening. Today is 17th and January 2017. Now we discuss UGC NET solved paper 2 2011 December. Okay. So now the time is 1 a.m. So it is very important to understand the answer of the 2011 December papers. Let's start our discussion. Okay. So the first question is the slope declining model was proposed by who gave slope decline theory? It is given by W. Penck. So answer is A. Okay. Next question. Next question is Nazca Plates lies where it lies? West of South America, east of South America, east of North America, west of North America. So the answer is west of Nazca Plate, west of South America. Okay, South America, west of South America. South America, it is west of Nazca Plate. Okay, the narrow block elevated between two normal faults is called. देखिए then a narrow block जो which is elevated between two normal faults is called a narrow block elevated between two normal fault is called graben. Okay, so graben is the answer, not host, not it is. So it is not. It is the answer is gravel. Okay, graben. A narrow block elevated between two main normal faults is called graben. Okay, match list 1 and list 2 correct answer given codes. Okay, given below. Okay, landforms and agents. So landforms. Landforms. If you see in the landform Erit, Polaji, Yardang, George. So Yardang is wind and Erit I think glacier. So answer if we also match A is 2, B is C is 4, C is 4. So answer is A. Given below the two statements, one is labeled as assertion and A and labeled as reason. Select the answer given the codes. Okay, next. So if you see the spherical weathering is the result of chemical weathering. So spherical weathering, which is the result of chemical weathering, and next. Spherical weathering occurs when water penetrates joints and dissolves the rock cementing material. Spherical weathering occurs when water penetrates joints and dissolves the rock cementing materials. So, if you also seen, so what is the answer? Answer is both A and R is true. R is correct explanation of A. Both A and R is true, but R is correct explanation of A. Both A and R are true. R is the correct explanation. The spherical weathering occurs when water penetrates joints and dissolved rock cementing materials. So it is the right B. So answer is B. Okay. So correct explanation R is not correct. R is not correct explanation of A. R जो correct explanation नहीं है. Sixth, given below the two statements, one labeled as assertion A and other labeled as reason. Select your answer from the codes given below. Assertion, reason. The islands along the mid-Atlantic ridge are highly prone to volcanic activity. देखिए द आइलैंड जो है
जो along the mid Atlantic ridge में and highly prone to volcanic activity. मिड अटलांटिक रीड्स और हाईली प्रोन है वोल्केनिक जो वोल्केनिक एक्टिविटी हम देखते हैं. देखिए द आइलैंड along the mid Atlantic ridge are highly prone to volcanic activity. so देखिए द आइसलैंड जो है along the mid Atlantic ridge are highly prone to volcanic activity. तो वहाँ पर देखिए आइलैंड में देखिए मिड अटलांटिक रिज में जहाँ पर हार्डली प्रोन किया है ना वोल्केनिक एक्टिविटी हम देखते हैं. एंड द सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज द मेन कॉज ऑफ द अर्थक्वेक एंड अटलांटिक ओशन. सो आंसर क्या होगा? देखिए बोथ एट ए एंड आर इज ट्रू. आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो ए इज द आंसर. देखिए पहले देखिए assertion देखिए द आइसलैंड ऑफ द मिड अटलांटिक रीज इज हाईली प्रोन ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटी. सो द सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज occurred. Okay, sea floor spreading occurred and earthquakes and in the Atlantic Ocean. So that's why we know that the island of the mid Atlantic ridge is highly prone of volcanic activity. So both A and R is true. And correct explanation here you see. Okay, 7. 7 देखिए the position Seven देखिए the position of the thermal equator the position of the thermal equator is normally at thermal. देखिए position of the thermal equator का जो position है नॉर्मली कितना डिग्री सेंटीग्रेड है? 0 डिग्री 5 डिग्री सॉरी कितना नॉर्थ है सॉरी 0 डिग्री इक्वेटर का थर्मल इक्वेटर जो है इट इज 0 डिग्री आई थिंक 7 का हाँ इट इज 0 डिग्री. 8 which of the following is not relevant to the edge of hypothesis to ice edge hypothesis. Which of the following is not relevant to ice edge hypothesis? So कौन सी जो है which of the following is not relevant to ice edge hypothesis? तो देखिए थर्मल कंट्रैक्शन थ्योरी जो आइस एज हाइपोथेसिस नहीं है. ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड तो है हाइपोथेसिस जो है तो उसके बाद देखेंगे ओजोन डिप्लीशन हाइपोथेसिस भी है एंड वोल्केनिक डस्ट हाइपोथेसिस भी है. तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए which of the one of the following is relevant to the ice age hypothesis. देखिए आंसर क्या होगा? is not relevant. ओके थर्मल कंट्रैक्शन थ्योरी जो है. ओके given below the two statements on labeled as assertion and other labeled as reason and select your answer from the quotes given below. Assertion देखिए pressure in the troposphere falls with increasing height. Pressure in the troposphere falls and increasing height and the upper atmosphere has relatively low temperature. The upper atmosphere have relatively low temperature. So आंसर क्या होगा? देखिए आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देखिए अपर एटमॉस्फेयर रिलेटिवली लो टेम्परेचर तो हम जानते हैं ना. तो उसके बाद देखिए प्रेशर जो है इन ट्रोपोस्फियर में तो वो फल करता है इंक्रीजिंग हाइट के साथ साथ. सो इसीलिए तो अपर एटमॉस्फेयर रिलेटिवली लो टेम्परेचर हो रहते हैं ना. तो आंसर होगा ए. नई का देखिए ए आंसर होगा 10 का. देखिए इन बिलो सेशन सो सेम देखिए द इंडियन मानसून इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एल निनो. देखिए इंडियन मानसून देखिए एल निनो के साथ इन्फ्लुएंस्ड बाय एल निनो इन्फ्लुएंस करते हैं. At the occurrence of El Nino, there develops a high pressure along the coast of Peru. At the occurrence देखिए जहाँ पर हमने देखता है क्या ना at the occurrence जो El Nino होते हैं तो there develops a high pressure area हमने देखते हैं the coast of Peru coast में. देखिए at the occurrence of El Nino there develops क्या होता है ना high pressure area में there develops a high pressure area along the coast of Peru. तो आंसर क्या होगा? देखिए एट द ऑकरेंस ऑफ एल निनो देयर डेवलप हाई प्रेशर एरिया हम देखते हैं. ओके हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो जाते हैं ना. इंडियन मोशन इज द इन्फ्लुएंस बाय सो एल निनो. ओके तो आंसर क्या होगा? ए ही होगा. ओके 10 का ए ही होगा. ओके तो क्योंकि ए एंड आर आर ट्रू आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैलकुलियस ओज. देखिए कौन जो है इज नॉट ए कैलकुलियस ओज नहीं है.
देखिए द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैलकुलियस ओ एच, ठीक है। तो देखिए पेट्रोपॉइड एंड डायटम ग्लोबिजेनिरा जेरिना एंड नन ऑफ दिस। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैलकुलियस ओज। देखिए देखिए कौन नहीं है कैलकुलियस ओज, देखिए पेट्रोपोड ओज, डायटम ओज, ग्लोबिजेनिरा ओज, नन ऑफ दिस। देखिए सो आंसर क्या होगा, देखिए देखिए नॉट ए कैलकुलियस ओज, देखिए नन ऑफ दिस। देखिए एक सब है, ठीक है। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है, फॉलोइंग इज नॉट ए कैलकुलियस ओज नहीं है, फॉलोइंग इज नॉट ए कैलकुलियस ओज, कौन जो नहीं है कैलकुलियस ओज। सो देखिए पोट्रोपोइड ओज भी कैलकुलियस एज है, ग्लोबिजेनिया भी है एंड डायटम भी है, तो नन ऑफ दीज है। इज नॉट ए कैलकुलियस ओज। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैलकुलियस ओज, ठीक है, नन ऑफ द अबव 12। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो क्या होगा आंसर, कौन जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोसिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखो देखिए एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल सक्सेशन, फूड चेन, फूड वेब। देखिए कौन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इकोसिस्टम का, देखिए एनर्जी फ्लो है इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर, देखिए ये तो नहीं होगा सक्सेशन फूड चेन। देखिए एनर्जी फ्लो तो हमने देखते हैं कि ऐसे फ्लो करते हैं, तो इसीलिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ग्लोबल कार्बन सिंक। देखिए अंटार्कटिक आइस शीट, सहारा डिजर्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, आर्कटिक ओशन। देखिए कौन जो है ग्लोबल कार्बन सिंक है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सो आंसर होगा 13 का, देखिए अंटार्कटिक आइस एज, ठीक है। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड टू बी द ग्लोबल कार्बन सिंक। देखिए ग्लोबल कार्बन सिंक हमने क्या कहते हैं, किसका कहते हैं, अंटार्कटिक आइस शीट का, ओके। एक और 14 का देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द डिजर्ट बायोम्स वेजिटेशन। कौन जो है उसको हमने इज नॉट करेक्ट अबाउट द डिजर्ट बायोम वेजिटेशन। सो आंसर होगा कौन होगा, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, देखिए करेक्ट नहीं है डिजर्ट बायोम्स। देखिए स्नो शॉर्ट टाइप फ्रूट तो ये है बायोम्स, रिफ्लेक्ट सरफेस भी है एंड एफिमेरल प्लांट जो है, लेकिन ये नहीं है करेक्ट, ओके। तो वॉक्सी कोटिंग मैच लिस्ट 1 and list 2 15 का लिस्ट 2 and करेक्ट आंसर गिवन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो, ठीक है। नेम ऑफ द जियोग्राफर्स एंड कंट्रीब्यूशंस, ओके। देखिए जियोग्राफर्स देखिए रोगर मिन्सल, रिचर्ड हडसन, पैट्रिक गेट्स, नॉर्बर्ट वेजनर, ओके। देखिए सिटीजन इवोल्यूशन, देखिए कंट्रीब्यूशन देखिए सिटीजन इवोल्यूशन, ओके। द ह्यूमन यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। देखिए 15 का जो ऑप्शन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें हमें चूज करना पड़ेगा, सही आंसर को चूज करना पड़ेगा, ओके। तो देखिए जो आंसर होगा, देखिए ए होगा आंसर, देखिए ए का 3 होगा, देखिए रोजगार मिन्सल जो है रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ओके मिन्सल, ओके। तो बी का 4 होगा, रिचर्ड हडसन देखिए नेचर ऑफ ज्योग्राफी, सी का 1 होगा पैट्रिक गेट्स सिटीज इन इवोल्यूशन, एंड डी का देखिए
डी का 2 होगा. ओके, द ह्यूमन बीइंग नॉर्बर्ट वाइनर. ओके, सो नेक्स्ट, अब याद रखिए पैट्रिक गर्ड्स सिटीज इवोल्यूशन. ओके, क्रिटिकल आइसोटोपन रेफर्स क्या करते हैं, रेफर्स टू the point of the least transport cost, the point of the minimum transport cost, the point of the minimum raw material cost, the point of the maximum raw material cost. तो क्रिटिकल आइसोटोपन दिखाते हैं क्या ना, देखिए द पॉइंट ऑफ लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. Given below are two statements, one labeled as assertion and other labeled as reason. Select your answer from the given codes below. Okay. The environmental determinism in geography mainly dealt with racial discrimination and the climate. देखिए एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है जियोग्राफी का, मैंने क्या डील करते हैं, द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन, रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लाइमेट को दिखाते हैं. ओके, रीजन देखिए एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाज ए फिलोसफी ऑफ द कॉलोनाइजर. एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज जियोग्राफी मीन्स mainly डील क्या करते हैं ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द क्लाइमेट. ठीक है, देखिए एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या दिखाते हैं ना, जियोग्राफी मेनली डील विद द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लाइमेट को दिखाते हैं. ओके, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाज ए फिलोसफी ऑफ द कॉलोनाइजर. सो देखिए यहाँ पर कोर्स देखिए, सो क्या आंसर होगा 17 का. देखिए एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है ये तो सही है, दोनों बात सही कह रहे हैं, ए एंड आर आर करेक्ट. बट आर जो है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज वाज फिलोसोफर ऑफ द कॉलोनाइजर, ए नहीं सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. ओके, ए को देखिए यहाँ पर बता रहा है क्या ना, जो एनवायरमेंटल जियोग्राफी इज जियोग्राफी मेनली डील्ड क्या करते हैं ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड क्लाइमेट के साथ. लेकिन यहाँ पर कुछ अदर्स कहते हैं. ओके, डिफरेंट कहते हैं, तो यहाँ पर ये बात नहीं होगा, तो बी होगा आंसर. ओके, given below as are two statements, one labeled as assertion and other labeled as reason. So select your answer from the codes given below. So 18 का देखिए क्वेश्चन देखिए at the locational climate factor put marketers heartlands as at a relative disadvantage or as compared to certain other larger and well-endowed areas of the world. लोकेशनल क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है पुट मैकिंडर्स हार्टलैंड एट ए रिलेटिव disadvantage as compared to certain and other larger and well-endowed areas of the world. Okay, relative disadvantage है compared to certain other larger and well-endowed areas of the world. And region heartland जो है was a region as permanent difficulties because of its interior location and resultant extremes of climate. देखिए extremes of climate, देखिए यहाँ पर देखिए both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So answer होगा A. देखिए दोनों ही इस बात सही है. Heartland was a region, okay, as for the as permanent region of permanent difficulties because of its interior locations and resultant extremes of climate. Okay. Okay, given below are the two statements, one labeled as assertion and other labeled as reason. Select your answer from the codes given below. देखिए assertion देखिए between two worlds wars, the whole process of suburban growth and decentralization started to speed up. देखिए टू वर्ल्ड्स वार में देखिए between the two world wars, the whole process of suburban growth and decentralization started to speed up. ओके, देखिए टू वर्ल्ड्स में हमने क्या देखा, होल प्रोसेस जो है suburban growth and decentralization जो है देखिए started up speed up हुआ है. the forces behind these are partly economic due to the great depression, partly separately again social due to the rise of the middle class, and separately technological due to rapid development in transport system. देखिए both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So ये बात सही है.
देखिए वर्ल्ड वार्स में हमने क्या दिखा था, होल फैस्ट अर्बन ग्रोथ हुआ था एंड इंटेलिजेंस स्टार्टेड स्पीड अप हुआ था। तो फोर्थ वीएन क्या है ना, पार्शियली इकोनॉमिक ड्यू टू द ग्रेट डिप्रेशन हुआ था एंड सोशली मिडिल क्लास जो है पार्टली टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो ये बात सही है, ठीक है। 20 का गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, one level as assertion and the same the Malthus started population has a tendency to increase the in geometric while food production tends to increase the arithmetic ratio। देखिए पॉपुलेशन, देखिए मेल्थस ने क्या, पॉपुलेशन जो टू इंक्रीज होता है क्या ना जियोमेट्रिक रिलेशन में, रेशियो में, एंड फूड प्रोडक्शन जो इंक्रीज होता है तो एरिथमेटिक रेशियो में। ओके, देखिए मेल्थस वाज ऑप्टिमिस्टिक दैट मैन कुड कंट्रोल हिज ओन ग्रोथ इन नंबर्स। मेल्थस क्या ऑप्टिमिस्ट क्या है, दैट देखिए दैट मैन कुड क्या करते हैं, कंट्रोल हिज ओन ग्रोथ इन नंबर्स। तो ये तो सही है बात है, मेल्थस जो है वो क्या है ना, मैन जो हो कुड कंट्रोल कर सकते हैं ओन ग्रोथ को। ओके, A Malthus studied population of his has a tendency to increase the geometric relationship production and increase. Okay, so both A and R is true, and R is the correct extension of A. 21st देखिए, given below two statements, one labeled as assertion and other labeled as reason. Select your answer the given from the given codes given below. Codes given below. देखिए assertion देखिए, population concentration is largely found in the religious regions like river basins and coastal plains। देखिए पॉपुलेशन कंसंट्रेशन कहाँ पर हमने देखते हैं, लार्जली फाउंड कहाँ पर देखते हैं ना, लार्जली कंसंट्रेशन इज लार्जली फाउंड इन द रीजन्स लाइक रिवर बेसिन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। ओके, पॉपुलेशन कंसंट्रेट होते हैं तो बस ये तो सही बात है ना। एंड रीजन देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज मेनली ड्यू टू ओके अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक रिसोर्स लाइक सॉइल मिनरल्स एंड वाटर। तो ये बात भी सही है, देखिए बोथ ए ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, 22 का देखिए, गिवन विल ट्रू स्टेटमेंट्स। तो देखिए सर देखिए, द क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज रिलेटिवली न्यूमरस इन द ट्राइबल हिल एरियाज। द क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है रिलेटिवली न्यूमरस कहाँ पर है, ट्राइबल हिल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। Many tribals were converted to Christianity during the British rule। Okay, so आंसर क्या होगा 22 का, तो 22 का भी आंसर वही होगा, both A and R are true and R is the correct explanation of A। 23 का देखिए, for the establishment of cotton textiles industry which one of the following factors is more ideal। देखिए एस्टेब्लिशमेंट देखिए हुआ है कि ना क्या ना, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जो फैक्टर है ये मोस्ट आइडियल क्या है, कौन सी फैक्टर जो बहुत आइडियल है। देखिए नियरनेस टू मार्केट, नियरनेस टू रॉ मटेरियल, नियरनेस टू वाटर रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो क्या आंसर होगा, नियरनेस टू रॉ मटेरियल आंसर होगा। देखिए फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर जो है मोर इंपॉर्टेंट आइडियल। देखिए नियरनेस टू रॉ मटेरियल जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग, देखिए नियरनेस टू रॉ मटेरियल, हु अमंग द फॉलोइंग जो वाज द फर्स्ट टू डेवलप द मेथड्स ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन। हु अमंग द फर्स्ट जो है, हु अमंग द फर्स्ट who among the first जो टू डेवलप किया है ना मेथड्स ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन को। देखिए वेबर, वेगनर, वेबर क्रॉप कॉम्बिनेशन मॉडल आपने देखा है। तो देखिए एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बी हुआ है, देखिए नियरनेस ऑफ रॉ मटेरियल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कौन से फैक्टर में होते हैं। देखिए जब रॉ मटेरियल जब बहुत ज़्यादा है जब नियरनेस होगा तो ओके। 25 देखिए, फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग अथर्स इन chronological order। यूज ऑफ कोड्स, यूज द कोड्स गिवन बिलो। देखिए फॉलोइंग chronological order स्ट्रैबो, टॉलेमी, हेरोडोटस एंड एराटोस्थेनिस। तो देखिए क्या होगा, पहले chronological order में हेरोडोटस, एराटोस्थेनिस, स्ट्रैबो, टॉलेमी। देखिए हेरोडोटस, एराटोस्थेनिस,
3 4 स्ट्रैबो टॉलेमी। ओके, इस तरह हो जाएगा। ओके, तो 26 का देखिए, given below are two statements okay, so one leveled as assassin and okay, next देखिए, many jute mills in India were closed down after the independence. Closed down after the independence. Okay, so there is acute shortage of raw materials, and also there is shortfall in foreign demand. Okay, for jute goods. Okay, तो वो तो डिमांड कम हो गया था, तो हम जानते हैं लेकिन जो इंडिया का जो क्लोज डाउन इन द इंडिपेंडेंस में, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। ओके, तो क्या होगा आंसर 26 का? देखिए, बोथ ए एंड आर तो ट्रू है, लेकिन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या देखना चाहिए, क्या आंसर होगा? देखिए, आंसर होगा बी होगा आंसर। ओके, here are true, are is the correct there is not correct explanation. Okay, which sector of the economy is most important factor in economic development के लिए? कौन सी इकोनॉमिक फैक्टर, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का कौन सी सेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? देखिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी, नाम दवा। तो सेक्टर होगा क्या? सेकेंडरी सेक्टर होगा। प्राइमरी, देखिए प्राइमरी तो में प्रोड्यूस होते हैं ना, प्रोड्यूस करते हैं हम, लेकिन सेकेंडरी में वो सब बनाते हैं हम डिफरेंट। ओके, डिफरेंट थिंग्स को, तो सेकेंडरी फैक्टर इज इंपॉर्टेंट होगा। देखिए 28 का, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर लेवल्ड एज रीजन, सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, ये तो हो गया है। तो 28 का देखिए, 28 का आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोडक्टिविटी रिफर्स क्या करते हैं ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी। रिफर्स करते हैं क्या ना, रिफर्स टू द सम टोटल जो है लैंड प्रोडक्टिविटी का, सम टोटल। देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या करते हैं, रिफर्स करते हैं ना सम टोटल ऑफ द लैंड प्रोडक्टिविटी का दिखाते हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी, लैंड प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिफर्स क्या करते हैं ना, सम टोटल ऑफ द लैंड प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी। रीजन क्या है? ऑल ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, ऑल जो थ्री कंपोनेंट्स है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, तो हमने तो क्या करते हैं, देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में देखिए सम टोटल ऑफ द लैंड प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी। सही है, सही बात है ना, सो ऑल आर ट्रू। ओके, सो ए इज द आंसर। ओके, तो ए हो गया है 27 8 का आंसर। 29 का देखिए, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है? सुपर इम्पोज बाउंड्री। ओके, सबसिक्वेंट नहीं है, तो ए भी नहीं है, रिलेट नहीं है, एंटीसीडेंट भी नहीं है, तो सुपर इम्पोज बाउंड्री, बी इज द आंसर। देखिए, ये आप याद रखिए, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज सुपर इम्पोज बाउंड्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब जो है हैज डिस्पर्स्ड कोर। ओके, कौन डिस्पर्स्ड कोर में है शेड्यूल्ड ट्राइब? देखिए, एओ भी नहीं है, संथल भी नहीं है, भील भी नहीं है, गारो, बी इज द आंसर। ओके, 30 का बी होगा आंसर। ओके, गारो इज द शेड्यूल्ड ट्राइब हु इज डिस्पर्स्ड। ओके, अरेंज देखिए 31 का देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सॉरी देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रिलीजियस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन ऑफ इमर्जेंस। देखिए, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिक्किम। सो आंसर क्या होगा? डी होगा आंसर। ओके, जुडाइज्म पहले है, उसके बाद देखिए इस्लाम, उसके बाद क्रिश्चियनिटी, उसके बाद सिखिज्म। ओके, 32 का देखिए, देखिए मैच करना चाहिए हमें। देखिए, ट्राइब्स एंड स्टेट, कौन ट्राइब है कहाँ पर कौन ट्राइब रहते हैं। ओके, देखिए, तो देखिए मैच 32 का, 32 का देखिए, मैच डिस्ट्रिक्ट आंसर कोड देखिए सी होगा आंसर यहाँ पर। देखिए ए का जो है, ए का बोडो जो है 3 असम में
देखिए बोडो कहाँ पर देखते हैं हम, कौन सी स्टेट्स में, असम में। उसके बाद देखिए बी जो है 4, बी देखिए गारो जो है वो मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो माउंटेन है, हिल्स है, ओके, सो माउंटेन नहीं हिल्स है। तो सी जो है गोंड वो है एक छत्तीसगढ़ में, एंड संथाल जो है झारखंड में। तो ए होगा, सी होगा आंसर। तो 33 का देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियंट सिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय, देखिए 33 का देखिए आंसर। देखिए द कॉन्सेप्ट रेडियंट जो सिटी है वाज प्रोपाउंडेड बाय, कौन प्रोपाउंड किया है, रेडियंट सिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय लेक कार्वेसर, अर्नेस्ट में, सरिया वाइमेटा, क्लेरेंस फेरी। सो आंसर क्या होगा, द कंसेप्ट ऑफ रेडियंट सिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय अर्नेस्ट में। अब ये देखिए रेडियंट सिटी अर्नेस्ट में, ई में, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर क्या है, थेरेसा मे नाउ, सो इट इज अर्नेस्ट में रेडियंट सिटी। आप याद रख सकते हैं। द सेक्टर थ्योरी ऑफ द सिटी मॉर्फोलॉजी, it incorporates the importance of transportation system again into the evolution of the social structure of the city. देखिए सेक्टर्स ऑफ द सेक्टर थ्योरी ऑफ द सिटी मॉर्फोलॉजी क्या है, incorporates the importance of the transport systems into the evolution of the social structure of the city, is particularly concerned with the concept of ecology. देखिए is particularly concerned with the concept of ecology. So sector theory देखिए it particularly concerned with the concept of ecology, postulates that multiple concenters of nuclei and responsible for urban growth is concerned with the directional bias. So answer क्या होगा, the sector theory of city morphology is particularly concerned with the concept of ecology. So B is the answer. Harris and Ullman are best known for their contributions to क्या, कहाँ पर contribution क्या है, Harris and Ullman, political geography, urban geography, economic geography and agriculture geography. So answer क्या होगा, आंसर होगा urban geography, हम जानते हैं Harris and Ullman। 35 हो गया, 36। So 36 का देखिए टेरिटोरियल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ, टेरिटोरियल जो प्रोडक्शन है जो कॉम्प्लेक्स इज प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स जो एसोसिएटेड है किसके साथ, इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ब्राजीलियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, कोरियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, क्या रशियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, क्या होगा, टेरिटोरियल प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ, इंडिया तो नहीं होगा, ब्राजीलियन भी नहीं होगा, कोरियन भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, डी रशियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट 37, इट हैज कोर एरिया एंड पेरिफेरी। सो देखिए इस यहाँ पर देखिए कोर एरिया है एंड पेरिफेरी है, फॉर्मल रीजन या फॉर्मल रीजन, पेरिफेरल रीजन, फंक्शनल रीजन एंड वर्नाकुलर रीजन। सो आंसर क्या होगा 37 का, ये मैं नहीं जानता हूँ, आंसर देखता हूँ, ओके आंसर होगा ए, ओके सो फॉर्मल रीजन होगा। ठीक है, कोर एंड पेरिफेरी, एक कोर हुआ है एंड उसके बाद पेरिफेरी हुआ है, तो ये फॉर्मल रीजन है। लगभग 13 क्वेश्चन है तो हमने सॉल्व कर लिया जल्दी से। Which of the following ports has an outer harbor and for export and iron ore? देखिए कौन सी जो फॉलोइंग पोर्ट्स है जहाँ पर आउटर जो हार्बर है एंड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर एक्सपोर्ट होते हैं। देखिए तो क्या होगा आंसर, देखिए 38 का देखिए 38 का क्या आंसर होगा, सी होगा आंसर, विशाखापट्टनम में आउटर हार्बर एरिया फॉर एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, ओके ठीक है। तो विशाखापट्टनम 39 का देखिए 39 का देखिए 39 का आंसर क्या होगा, देखिए मैच लिस्ट देखिए कॉन्सेप्ट एंड प्रोपाउंडर, ठीक है। तो गार्डन सिटी कौन दिया है बताइए,
गार्डन सिटी, न्यू टाउन्स, नेबरहुड, ट्रैफिक, सेग्रीगेशन, देखिए क्लियरेंस पेरी, सर कॉलिन बुखानन, इवेंजर हावर्ड, सर पैट्रिक एवरक्रॉम्बी। सो क्या आंसर होगा? देखिए बी जो है न्यू, देखिए बी होगा आंसर। ओके, देखिए पहले मैं मैच कर रहा हूँ, ए का 3 होगा, गार्डन सिटी कौन होगा? एवेंजर हावर्ड, ठीक है। तो उसके बाद देखिए बी का 4 होगा। ओके, बी जो है न्यू टाउन्स जो है उसका 4 होगा आंसर। न्यू टाउन्स क्या ना, सर पैट्रिक एवरक्रॉम्बी। अगेन एंड सी का 1 होगा, सी का देखिए नेबरहुड, क्लियरेंस पेट्री, एंड डी का देखिए 2 होगा, डी देखिए ट्रैफिक सेग्रीगेशन, सर कॉलिन बुखानन। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो ये तो हो गया है, सॉरी नहीं यहाँ पर नहीं हुआ है, 40 का देखेंगे हम। ओके, सो फाइंड आउट द करेक्ट बॉटम अप हायरार्की ऑफ द ग्रोथ ऑफ फक्की इन इंडिया। ओके, तो देखिए ग्रोथ सेंटर, तो ग्रोथ सेंटर, ग्रोथ पॉइंट, ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर, ग्रोथ पोल, ग्रोथ पॉइंट, ग्रोथ, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, प्रीवियस ईयर भी आते हैं आए थे। ओके, तो ग्रोथ पोल और ग्रोथ पॉइंट, ग्रोथ सेंटर एंड सर्विस सेंटर, ग्रोथ पॉइंट, ग्रोथ सेंटर एंड ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर, ग्रोथ पोल पॉइंट एंड ग्रोथ सर्विस सेंटर। देखिए क्या आंसर होगा? बॉटम ऑफ हायरार्की ग्रोथ। ओके, फर्स्ट इन इंडिया। देखिए 40 का जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर होगा। ओके, सर्विस सेंटर पहले होगा, तो उसके बाद ग्रोथ पॉइंट होगा, उसके बाद ग्रोथ सेंटर होगा, उसके बाद ग्रोथ पोल होगा। ओके, 41 का व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एरिया अंडर द सॉइल कवर इन इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाइए। देखिए व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा सॉइल कवर इन इंडिया में, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाइए आप। देखिए एलुवियल सॉइल, एरिया कवर हुआ है। देखिए एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटरेट सॉइल। देखिए एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड लेटरेट सॉइल। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर में, नेक्स्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में आए थे। तो 41 का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। डी देखिए ब्लैक सॉइल पहले होगा कवर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, उसके बाद रेड सॉइल, उसके बाद एलुवियल सॉइल, उसके बाद लेटरेट सॉइल। ओके, which of the 42 का which of the following is the डी होगा आंसर। ब्लैक सॉइल आपको याद रखना ही चाहिए, ब्लैक सॉइल पहले एंड लास्ट होगा लेटरेट सॉइल। ये जब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या गया आपको एरिया कवर। ओके, एंड which of the following, अगर असेंडिंग में कहते तो आपको उसको अपोजिट कहना चाहिए। ओके, तो which of the following is the correct sequence of the states in descending order of density of population in India। देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट सीक्वेंस क्या बताना चाहिए। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का इंडिया का अकॉर्डिंग टू द वन सेंसस में। ओके, देखिए वेस्ट बंगाल जो है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, केरला। देखिए वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड केरला। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कहना चाहिए। ओके, देखिए वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड केरला। देखिए पहले उत्तर प्रदेश तो होगा, तो देखिए जो 42 का आंसर क्या होगा? सी होगा आंसर। सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला, उत्तर प्रदेश। सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर कम से अब बढ़ते जाएगा। ओके, तो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, केरला है एंड उत्तर प्रदेश है। ओके, सो 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर होगा सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 43 which one of the 43 which one of the following category cartographic method is generally used to show population density। देखिए कौन सी कैटेगरी मेथड हमने यूज करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखाने के लिए? देखिए क्या हमने कंटूर्स के दिखाते हैं, कंटूर्स, फ्लोरोप्लेथ, डॉट एंड आइसोप्लेथ। सो आंसर क्या होगा 43 का? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बी होगा आंसर, कोरोप्लेथ। लोरेंज कर्व जो है मेजर्स करते हैं क्या ना, कर्वेचर, सिमिलरिटी, इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी। क्या मेजर करते हैं हम लोरेंज कर्व से? ओके, तो 44 का आंसर क्या होगा? देखिए इनइक्वालिटी हमने मेजर करते हैं। ओके, इनइक्वालिटी, ठीक है, तो इनइक्वालिटी मेजर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग मैप्स इन ऑर्डर इन व्हिच दे आर प्रिपेयर्ड विथ स्मॉल टू लार्ज स्केल। ओके, देखिए आपको अरेंज करना चाहिए मैप्स को। देखिए हमने क्या प्रिपेयर करते कैसे ना, स्मॉल टू लार्ज मैप में, स्मॉल से लार्ज मैप। देखिए
आपको अरेंज करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो देखिए कैसे आप अरेंज करेंगे। ओके देखिए, वर्ल्ड मैप टोपोसीट आपके स्मॉल से लार्ज तक जाना चाहिए। ओके, वर्ल्ड मैप टोपोसीट कैडेस्ट्रल मैप एंड स्टेट मैप। ओके सो क्या आंसर होगा आपको देखना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो आंसर होगा, देखिए बी होगा आंसर। देखिए पहले हमने क्या करते हैं ना, कैडेस्ट्रल मैप करते हैं, उसके बाद देखिए टोपोसीट करते हैं, उसके बाद देखिए देखिए स्टेट मैप बनाते हैं, सॉरी वर्ल्ड मैप बनाते हैं, उसके बाद स्टेट मैप। 45 का जो आंसर होगा तो बी होगा आंसर। ओके बी बी बी। ओके तो देखिए देखिए और एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। कैडेस्ट्रल मैप, टोपोसीट, वर्ल्ड मैप, स्टेट मैप, स्मॉल टू लार्ज स्केल, ठीक है। मैच लिस्ट वन ए में अब भी देख लेना, देख लीजिए आपके बुक में। अगर ये अगर रॉन्ग मैं अगर कह रहा हूँ तो आपको कमेंट में लिखना है। ओके तो मेरा भी कुछ कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है क्या ना बी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए 46 का, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखिए लैंड सेट, स्पॉट, IRS एंड ERS, ठीक है। तो देखिए 46 का जो मैच करिए, अब 46 का क्या आंसर होगा, बी होगा, ठीक है। ये देखिए A2 होगा, देखिए लैंड सेट नासा, ठीक है। बी होगा 1, स्पॉट फ्रांस, सी होगा 4, IRS इंडिया, 3 किसका ना 4D का, ERS यूरोप, ठीक है। तो बी होगा आंसर। आपको इसके बाद रीडिंग करना चाहिए फॉलोइंग पैसेज को, इसके बाद आपको आंसर देना होगा। ओके जो 4 क्वेश्चन बाकी रह गया है। देखिए इन द यूनाइटेड स्टेट्स मेनी पीपल कंसिडर इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी। देखिए यूनाइटेड स्टेट का जो पीपल है वो कंसिडर किया करता है ना इकोनॉमिक ग्रोथ वो नेसेसरी है। वेयर देखिए सम स्टिल सपोर्ट द एटीट्यूड ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी। देखिए सम क्या सपोर्ट करते हैं, देखिए एटीट्यूड को सपोर्ट करते हैं, ग्रोथ एट एनी, कोई भी वो कॉस्ट को सपोर्ट करता है। ओके इंक्रीजिंग नंबर आर बिकमिंग अवार्ड। ओके जब बढ़ रहा है नंबर जो है, बिकमिंग अवार्ड हो रहा है, एनवायरमेंटल कॉस्ट को देखने के लिए देख रहे हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं। ड्यूरिंग द 1970s में देखिए पब्लिक डिसर्टिफिकेशन हमने देखा। ओके 1970s में विथ ग्रोथ मेनिया अपेयर्ड इन द वेराइटी ऑफ वेज। देखिए जहाँ पर हमने देखा डिसर्टिफिकेशन हमने क्या देखा, विद द ग्रोथ मेनिया जो बढ़ रहे हैं, अपेयर्ड द वेराइटी ऑफ द वेज में, डिफरेंट वेज में बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल देखिए वेर सेविंग क्या कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या दैट विजिटर्स जो है वेर वेलकम बट ना न्यू रेसिडेंट, जो विजिटर्स वेलकम हमने वेलकम कर रहे हैं न्यू रेसिडेंट के लिए, वेर नॉट ओके उसको हमने नहीं ले रहे हैं। ओके वेलकम न्यू रेसिडेंट्स वेर नॉट। ओके इन कोलोराडो बम्पर, देखिए कोलोराडो बम्पर स्टिकर्स देखिए डिक्लाइड क्या हो रहा है ना, द कैलिफोर्नियन जो ऑफ कोलोराडो इन देखिए डिक्लाइड किया है स्टिकर्स जो डिक्लाइड किया है द कैलिफोर्नियन जो कोलोराडो के बारे में डिक्लेयर किया। इन कैलिफोर्निया देखिए वोटर्स जो है पास्ट प्रोपोजिशन 20। ओके क्या पास किया है ना, प्रोपोजिशन 20 को पास किया है। ओके व्हिच प्लेस किया टाइट कंट्रोल ऑन ऑल स्टेट, जो इसको टाइट किया है कंट्रोल जो ऑल स्टेट ने डेवलप किया है डेवलपमेंट्स। देखिए टाइट कंट्रोल ऑफ ऑल कोस्टल जोन डेवलपमेंट किया है। कम्युनिटीज इन मेनी प्लेसेस में कम्युनिटी को डेवलपमेंट कर रहा है। बिकम मोर सिलेक्टिव अबाउट द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज देखिए द कम्युनिटीज इन मेनी प्लेसेस बिकम्स मोर सिलेक्टिव अबाउट द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को टाइट कर रहा है, विच दे वर विलिंग to accept clean industry were considered desired but dirty industries were not। देखिए क्लीन इंडस्ट्री का हमने क्या कर रहा है, कंसिडर कर डिजायर्ड कर रहा है, बट डार्टी इंडस्ट्री को हमने नहीं कर रहा है। देखिए ये पर क्वेश्चन क्या है, इन द यूनाइटेड स्टेट मेनी पीपल कंसिडर क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ एज ए नेसेसरी बिकॉज एडिशनल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, एडिशनल टैक्स रिसोर्स फॉर द गवर्नमेंट, पोटेंशियल फॉर हायर GDP ग्रोथ, पोटेंशियल फॉर हाई पर्सनल इनकम्स। तो आंसर क्या होगा, देखिए economic growth is necessary because
देखिए इकोनॉमिक बिकॉज वेयर इज स्टिल सपोर्ट द एटीट्यूड ऑफ ग्रोथ एट एनी कॉस्ट. ओके, आंसर क्या होगा 47 का आंसर होगा सी, फॉर हायर जीडीपी ग्रोथ. ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 का. Many Americans in recent times are becoming environmentally conscious because देखिए many American जो है recent times में देखिए क्या है ना, becoming environmentally conscious because वो क्यों वो environmental conscious है, क्योंकि spread of economic awareness. Okay, sorry, spread of environmental awareness, spread environmental friendly technology add jobs of economy in the economy, that understanding the trade-off between the economic growth and environmental cost. Economic growth in desired, not necessity. So आंसर क्या होगा 48 का आंसर होगा सी. देखिए द अंडरस्टैंडिंग द ट्रेड ऑफ बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट. ओके, देखिए उसके बाद देखिए द ग्रोथ मैनिया रेफर्स क्या करते हैं, एवर्सन टू ग्रोथ ओनली एटीट्यूड, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आंसर होगा ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, तो मेनी अमेरिकन स्टेट्स अप्रूव टूरिस्ट बिकॉज बट नॉट इमिग्रेंट्स, बिकॉज टूरिस्ट को अप्रूव करते हैं लेकिन इमिग्रेंट्स को नहीं करते, बिकॉज द इमिग्रेंट्स टेक अवे जॉब्स ऑफ द लोकल्स. ओके, सी होगा आंसर. ओके, ये नहीं होगा. ओके, टूरिस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट नहीं, सो सी द आंसर. So I think you know all the things, so I think it will help you. So thank you for listening. Thank you. Okay, thank you for listening.